Good morning, students. My name is Dilip Kamato and I am your math teacher of class 5. Today we will read the chapter 5. The chapter 5 name is factors and multiple. This is the topic 2. We have read the topic 1 in previous classes. That was the what are the facts and what was the multiplication method of any numbers. Today we will read the first topic is prime numbers. What is the prime number? As you can see here, a number which has only factor namely 1, so namely 2 factors namely 1 and the number itself. कहने का मतलब यही है कि वैसा नंबर जिसका सिर्फ दो ही फैक्टर है, इसमें से वो खुद एक 1 हो और दूसरा वो खुद itself. दैट मींस वैसा नंबर जिसका फैक्टर जो है एक 1 आए और दूसरा खुद आए, तो वैसे नंबर को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं. फॉर example 5, 7, 11 and 16. You can see the factors of 5 is only 1 and 5. Factors of 7 is equal to 1 and 7, 11, 1 and 11. And no any factors are. कहने का मतलब ये है कि अगर 5 का मल्टीपल 5 का फैक्टर देखा जाए तो सिर्फ 1 5 ही आता है, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं आता. और ये 5 किसी और के टेबल में आता भी नहीं है. 7 को अगर देखा जाए तो वो सिर्फ 1 का टेबल में और 7 का खुद का टेबल में आता है. 11 को देखा जाए तो वो भी 1 और 11 का टेबल में ही आता है. इसके अलावा एक नंबर जो है किसी और के टेबल में नहीं आते. मतलब कि इन सारे नंबर्स का ये दो अलावा इसके दो के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होता. इसलिए ये सारे नंबर 5, 7, 11 को हम लोग प्राइम नंबर्स कहते हैं. Again I repeat, the number which has only two factors, first one and the second itself. Okay. Next, twin numbers. What are the twin numbers? You can see here the difference of two prime number. The difference of two prime number is 2. कहने का मतलब यही है कि अगर वैसे दो प्राइम नंबर का डिफरेंस जब 2 आए तो हम लोग उसको ट्विन प्राइम्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल the 5 and 7. 5 is also a prime number, 7 is also a prime number, and the difference of 5 and 7 is 2. And next example 41 and 43. That means 41 is the prime number, 43 is the prime number, and the difference of these prime numbers is 2. तो वैसे दो प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस 2 आए वैसे प्राइम नंबर्स को हम लोग ट्विन प्राइम्स कहते हैं. The next, composite number. Composite number that means a number which has more than two factors. कहने का मतलब ये है कि वैसा नंबर जिसके अपने आप में दो से ज्यादा फैक्टर हो. फॉर एग्जांपल you can see 8, 10, 15. You can see here the 8 comes in the table of 2, comes in the table of 4, comes in the table of 8. That means here are the factors more than 2. So 8 is called a composite number. 10. The table of 10 comes in table of 2, table of 5 and table of 10. So the number which has more than two factors called the composite number. Okay. Now to discuss the prime factorization, how can we find the prime factorization of any number? So we have the two methods. First is factor tree method. Second is division method. What are the factor tree method? In factor tree method, we will distribute the number from the lowest to the lowest. That means factor tree method में हम लोग किसी भी नंबर को डिस्ट्रीब्यूट यानी तोड़ना शुरू करते हैं और वो तोड़ने का काम जो है सबसे पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे और लास्ट में उसको छोटा करके ही छोड़ेंगे. So the number 1225, we will divide the number by 5. As you can see, this is the first number which can divide this number. That means इस फर्स्ट नंबर को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे. 5 से डिवाइड करने पर हम लोग का जो नंबर आता है 245. 245 आता है. हम लोग को पता है कि ये 5 जो प्राइम नंबर है. दैट मींस इसको तोड़ा नहीं कर सकते, इसलिए जिस नंबर को तोड़ा नहीं कर सकता उसको सर्किल बनाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट 245 को हम लोग फिर 5 से डिवाइड करते हैं. फिर अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 से डिवाइड करने पर ये नंबर आता है 49 टाइम्स में 245 मेरा आता है. फिर पता है कि ये 5 जो है वो प्राइम नंबर है, इसलिए इसको सर्किल कर दें क्योंकि जोड़ा नहीं जा सकता. और ये 49 इसको हम जोड़ सकते हैं, इसलिए 49 को हम लोग फिर फैक्टर कर रहे हैं. फैक्टर करने पर ये आता है 7 के टेबल में 7 × 7.
दैट मींस ये 7 भी एक प्राइम नंबर है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता और ये 7 भी एक प्राइम नंबर है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो एट लास्ट हम लोग फैक्टर्स की मेथड में क्या करेंगे, इस छोटे नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक वो खुद टूटने से मना करेंगे। So these numbers are the prime factors. So we write the factors are 5, 5, 7, 7. 5, 5, 7, 7. In this way. The next method is division method. How can we find the prime factor by the division method? So I am taking an example 2210. 2210. How can I divide it? So at first we will write the number 2210. Then we will give the divide from the 2 as you can see here. This is the 2. We will give the divide from the 2 because we know that when the one digit will be either 2, 0, 4, 6, 8, we can divide the number by the 2. So I am giving the number, dividing the number by the 2. तो उसे डिवाइड करते हैं तो 2 1 that 2, 2 1 that 2. That is here is a small number, so we will take a 0. Then the number will be 1, 0, 10, 2, 5, 10. Again, this number can be divided by the 5 times. So I am dividing the number by the 5. 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 2 are 10, 1 रिमेनिंग बचा तो 1 0 10, 5 2 are 10 और 5 1 are 5. अगेन ये जो नंबर है 221, इस नंबर को हम लोग 13 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 13 से पहले ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। आप चेक कर सकते हैं 13 से पहले जो भी टेबल है 12 तक का, उन 12 तक के टेबल से ये नंबर डिवाइड नहीं होगी। इसीलिए हम इस नंबर को 13 से डिवाइड कर रहे हैं। 13 1 जा 13, here will be 9 and 91, that is 13 7 जा 91. Now ये 7 जो है ये प्राइम नंबर है, ये 7 जो है प्राइम नंबर है क्योंकि ये 17 जो है प्राइम नंबर है क्योंकि ये प्राइम नंबर सिर्फ इसका दो ही फैक्टर है 1 और 70 और ये किसी के टेबल में नहीं आता, इसलिए इस नंबर को और तोड़ा नहीं जा सकता। तो हम लोग को डिवाइड नहीं दे सकते, डिवाइड ना दे सके क्योंकि ये काम यहाँ रुक गया है, इसलिए जो इसका फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे वो होंगे 2 5 13 17, 2 5 13 17। कहने का मतलब यही है कि प्राइम फैक्टराइजेशन को फाइंड करने का सिर्फ दो तरीका है, फैक्टर ट्री मेथड एंड डिवीजन मेथड। फैक्टर ट्री मेथड में क्या करना है कि सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना है, काम वही है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। सबसे छोटे नंबर से फर्स्ट डिवाइड करना शुरू करेंगे और तब तक डिवाइड करेंगे कि जब तक वो टूटने से मना ना हो जाए, यानी कि वो टूटे ना। नेक्स्ट डिवीजन मेथड में भी वही काम करेंगे, छोटे नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे और तब तक डिवाइड करेंगे कि जब तक वो टूटे ना। इस तरह in this way we can find the prime factorization by factor tree method and division method. Okay, now we will read the next topic, HCF. The full form of HCF is highest common factor. Highest common factor, that means when you find the HCF, you will take the common factor and the highest. That means जब किसी फैक्टर का हम लोग कॉमन पॉइंट निकालेंगे, जब बहुत सारे नंबर होंगे उन नंबर्स का फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद सारे नंबर्स में कॉमन ढूंढने की क्या क्या कॉमन फैक्टर है, तब उस कॉमन फैक्टर्स में से जो मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा दैट विल कॉल द HCF. फॉर एग्जांपल हियर वी कैन फाइंड द मेथड्स ऑफ फाइंडिंग HCF. दैट मींस हम लोग ऐसे फाइंड करने के हमारे पास तीन तरीके हैं. द फर्स्ट इज कॉमन फैक्टर मेथड. Common factor method, that means at first we will write the commons, then we will do at first we will write the common factors of the number, then we will circle the number that which is the highest, then we will find the HCF. कहने का मतलब है कि इस मेथड में यही करना है कि जो भी मेरे पास नंबर दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल ये दिया 12 36 एंड 64, हमारे पास यहाँ तीन नंबर है, इन तीन नंबरों का HCF निकालना है. तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इन नंबर्स का फैक्टर्स लिखेंगे. एज यू कैन सी हियर, सबसे पहले नंबर सारे नंबर्स का फैक्टर्स लिखेंगे. फिर फैक्टर्स को लिखने के बाद उनमें कॉमन नंबर्स को ढूंढेंगे. कॉमन नंबर्स को ढूंढने के बाद जो मेरा सबसे हाईएस्ट कॉमन होगा दैट विल बी द HCF बाय दिस मेथड. ओके, यानी कि ये भी कह सकते हैं कि HCF में जो है किसी भी नंबर्स का जो HCF होता है, किसी भी नंबर का जो HCF होता है वो हमेशा सारे नंबर से बिलो होता है या फिर उसके इक्वल होता है. दैट मींस you can see here the number is 12 36 and 64. हमारे पास तीन नंबर है 12 36 and 64.
जब हम तीनों नंबर का एचसीएफ निकालेंगे तो वो जो नंबर आएगा एचसीएफ दैट विल बी द लेस देन दिस नंबर, दैट मींस सारे नंबरों से वो छोटा होगा या फिर मैक्सिमम होगा तो 12 के बराबर होगा, क्योंकि इन सारे नंबर्स में 12 सबसे छोटा है, इन सारे नंबर्स में 12 सबसे छोटा है, तो मेरा जो एचसीएफ आएगा वो या तो खुद 12 आएगा या फिर उससे छोटा आएगा, उससे कभी बड़ा नहीं आ सकता। So at first the first method is common factors method, and writing an example here 12, 36 and 64. Then what are the factors of 12? You can see here factors of 12. तो हम लोग देखेंगे कि ये 12 आता है 1 के टेबल में आता है, फिर 1 के टेबल के बाद 2 के टेबल में आता है, 2 के बाद 3 के टेबल में आता है, फिर 3 के बाद 4 के टेबल में आता है, 4 के बाद 6 के टेबल में आता है और 6 के बाद 12 के टेबल में आता है। तो in this way we can write the factors of 12. Again the factors of 36, तो हम देखेंगे कि 36 से 1 के टेबल में आता है, 2 का आता है, 3 का आता है, 4 का आता है, 6 का आता है, 9 का आता है, 12 का आता है, 18 का आता है, फिर 36 का आता है। उसी प्रकार हम भी देखेंगे फैक्टर्स ऑफ 64 किस में आएगा, तो 1 के टेबल में आएगा, 2 का आएगा, 4 का आएगा, 8 का आएगा, 16 का आएगा, 32 का आएगा, 64 का आएगा। इन सारे नंबर्स का फैक्टर लिखने के बाद अब हम देखेंगे कि इन तीनों सारे फैक्टर्स में 1 जो है इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम उसको सर्किल कर देंगे। फिर देखेंगे कि 2 2 2 तीनों में है, तो इन सारे को सर्किल कर देंगे। फिर देखेंगे कि 3 तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो हम इसको सर्किल नहीं करेंगे। फिर देखेंगे कि यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो सबको सर्किल कर देंगे। फिर देखेंगे इस नंबर में 6 है, 6 यहाँ पे भी है लेकिन इसमें नहीं है, तो सर्किल नहीं करेंगे। फिर देखेंगे यहाँ 12 है, 12 यहाँ भी है लेकिन यहाँ नहीं है, इसको भी सर्किल नहीं करेंगे। फिर हम देखेंगे कि व्हाट आर द कॉमन पॉइंट, कॉमन क्या क्या है, तो हम यहाँ देखेंगे जो जो सब कॉमन है 1 2 एंड 4, तो हम लिखेंगे 1 2 एंड 4। फिर जैसे कि मैंने बताया कि HCF दैट मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन होंगे, जो कॉमन फैक्टर होंगे वो हाईएस्ट में जो आएगा वो उसका HCF होगा। तो हम यहाँ देखेंगे कि 1 2 एंड 4 में हाईएस्ट में क्या है 4, दैट मींस द HCF इज इक्वल टू 4। Then we can say by the common factors method we can easily find out the HCF. Now the next is prime factorization method. Prime factorization method. In this method, at first we will divide the numbers which was in the example, the number 12, 36 and 64. At first we will divide the numbers in the prime number, as you can see here. हम लोग सबसे पहले इस नंबर्स को, सारे नंबर्स को डिवाइड करेंगे वो प्राइम नंबर्स में, बिकॉज द नंबर से प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम लोग जिस नंबर्स को जो भी डिवाइड करेंगे तो हमेशा प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। प्राइम नंबर से डिवाइड करने के बाद ये देखना होगा कि सारे नंबर्स में मेरे कॉमन क्या क्या है, जैसे हम जानते हैं एक्सप्लेन करते हैं इस पे। तो एग्जांपल जो है वो नंबर है 12, 36 एंड 64। इन सारे नंबर्स को एग्जांपल के ऊपर इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो एट फर्स्ट वी डिवाइड द नंबर 12, आई एम डिवाइडिंग द नंबर 12। तो 12 divided by 2 is 6, again divided by 2 is 3. So we write here 2 divided by 6, when 2 divided by 6, sorry 3. So the number of fractions is 2, 2 and 3. Then 36 को डिवाइड करें, 36 को जब फर्स्ट 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। ओके, नेक्स्ट 64 जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 32 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। अब ये नंबर सारे मेरे जो प्राइम है, प्राइम नंबर से इसमें सी है 2 2 3 प्राइम नंबर से, 2 2 3 3 प्राइम नंबर से, 2 2 सारे प्राइम नंबर। अब हम क्या करेंगे कि जो 12 का फैक्टर्स है उसको हम लिखेंगे, द फैक्टर्स ऑफ 12 इक्वल टू 2 2 3 2 2 3। नेक्स्ट द फैक्टर ऑफ 36 का फैक्टर क्या है 2 2 3 3 2 2 3 3। नेक्स्ट 64 का फैक्टर 1 2 3 4 5 6 6 टाइम 2, so 1 2 3 4 5 6 6 times 2. We write here the factors of 12, 36 and 64 which are here. Now we will see what are the commons. तो देखेंगे कि ये 2 जो है इन तीनों में है तो सर्किल कर देंगे सबको। फिर देखेंगे ये 2 जो है फिर तीनों में है तो सबको सर्किल कर देंगे। फिर देखेंगे कि 3 यहाँ पे लेकिन इसमें नहीं है तो इसको सर्किल नहीं करेंगे। फिर अब सारे नंबर्स कॉमन तो कुछ भी है नहीं, जो भी कॉमन है उसको यहाँ पे सर्किल करके फिर देखेंगे HCF इक्वल टू जो मेरा कॉमन नंबर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक 2 मल्टीप्लाई 2 what will be the 4. As you can see here there was a set question 12, 36 and 64, 12, 36 and 64
the HCF is 4 4. By any method you can find the HCF will be same. तो इसमें करना क्या है कि जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम HCF फाइंड आउट करेंगे, HCF फाइंड आउट करने के दौरान हमेशा ये याद में रखना कि HCF जो है उसका जो हमेशा कॉमन पॉइंट होता है वो हमेशा लोवेस्ट होगा। लोवेस्ट मतलब जो छोटा सबसे कम, जो सबसे कम कॉमन आया है, सबसे कम कॉमन आया है उसी को काउंट करके लिख देना है। ओके, नाउ वी विल मेक द थर्ड मेथड, long division method. Long division method, that is, in this method we will divide the numbers. Okay, so I am taking the same example 12, 36 and 64. We got in the next, we got in the previous method. So the number of 12, 36 and 64. तो long division method में क्या करना है कि long division method में एक को divide करना, सबसे पहले division that is divide. तो divide करना है तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट किसी टू नंबर्स को हम लोग डिवाइड करते हैं। तो ऐसे हम लोग डिवाइड जैसे जानते हैं जो डिवाइड ये जो 12 है ये 36 है, 36 बड़ा है 12 छोटा है, तो 36 को डिवाइड करेंगे, इसलिए 36 को एज ए डिवाइडेड यहाँ पे लिख देते हैं, फिर दोनों साइड आउटर ब्रैकेट दे देते हैं, फिर ये 12 क्योंकि ये छोटा है इसलिए डिवीजन हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि 12 से जब 36 को डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। As we know that in the table of 12, table 3 का 36, so I write here 3 and we write the 36, then subtract it, the subtraction is 0 and 0, that is cancel. तो जैसा कि हमने देखा कि अभी हमने 12 से इस नंबर को डिवाइड किया, ये पूरी तरह से कैंसिल हो गया। फिर हम क्या करेंगे कि जिस नंबर से डिवाइड किया गया है अब पूरी तरह से कैंसिल हो गया, उसी नंबर से that means 12 से फिर 64 को डिवाइड करना है। तो फिर 64 और 12 में से 64 बड़ा है, 64 एज ए डिवाइडेड एंड 12 एज ए डिवीजन। फिर क्या करेंगे 12 के टेबल में 64 कितना टाइम आता, तो 12 के टेबल में 64 तो आता नहीं है, तो हमें देखेंगे 12 के टेबल में 64 से लेस देन यानी जस्ट लेस देन क्या आया 60, तो हमने टाइम 12 5 60। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 सब्ट्रैक्ट 0 इज 4, 6 सब्ट्रैक्ट 6 इज कैंसिल। ठीक है, फिर अब यहाँ पे मेरे पास 4 रिमेनिंग बचा है, तो हम क्या करेंगे कि हम इस नंबर को तब तक डिवाइड करेंगे जब तक मेरा रिमेनिंग 0 ना आ जाए। इसीलिए सिंस मेरे पास ये रिमेनिंग 4 बचा है, फिर अब इस 4 से, इस रिमाइंडर से जो डिवीजन था 12, इस रिमाइंडर से इस डिवीजन को डिवाइड करेंगे। दैट मींस ये 12 को यहां लिख देंगे, इस 12 को यहां लिख देंगे और डिवाइड करेंगे 4 से। फिर जब 4 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कि 4 का टेबल में 3 टाइम्स 12 आता है, तो 4 3 जा 12, अच्छा सब्ट्रैक्ट करेंगे कैंसिल हो जाएगा। दैट मींस लॉन्ग डिवीजन मेथड ये कहता है कि मेरे पास 2 से ज्यादा नंबर हो सकते हैं, 3 नंबर हो सकते हैं, 4 नंबर हो सकते हैं, तो हमको क्या करना है कि सबसे पहले किसी भी 2 नंबर्स को एट फर्स्ट डिवाइड करते हैं और तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि मेरा वो रिमाइंडर 0 ना आ जाए। फिर अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है दोनों नंबर्स को डिवाइड करने पर, तो हम देखेंगे कि इस नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आया। फॉर एग्जांपल यहाँ 12 से डिवाइड किया रिमाइंडर 0 आया, तो अब इस डिवीजन से दूसरे नंबर को डिवाइड करेंगे, एज यू कैन सी हियर। अब इस 12 से 64 को डिवाइड करेंगे। फिर सेम प्रोसेस इस नंबर्स को लिखने के बाद फिर उसी टाइप जब तक 0 ना आ जाए तब तक डिवाइड करना है। तो हम यहाँ देखें कि 12 से जब डिवाइड किए तो ये रिमाइंडर 0 नहीं है, फिर रिमाइंडर 4 आ गया था, इस रिमाइंडर से फिर हम इस डिवीजन को डिवाइड किए, दैट यू कैन सी हियर रिमाइंडर से फिर डिवीजन को डिवाइड किए, रिमाइंडर से जब डिवीजन को डिवाइड किए तो फिर यहाँ पे इसका रिमाइंडर जो है वो 0 आया। दैट मींस अब ये जो नंबर 4 है ये मेरा डिवीजन है और इसी डिवीजन से ये जो 0 आया है रिमाइंडर। ठीक है, अब मेरे पास और कोई एक्स्ट्रा नंबर होता तो अब फिर हम उस नंबर को इस 4 से डिवाइड करते ताकि मेरा HCF निकाला जा सके, लेकिन मेरे पास आज कोई नंबर है नहीं और इसी नंबर से डिवाइड करने पर 0 आया है, इसीलिए मेरा जो HCF होगा वो ये नंबर 4 हो जाएगा। ओके, so today we discussed the HCF and the prime factorization. Okay, the next topic will be on the next class, so till then watch the video and understand the chapter. Thank you.